Hello everyone, welcome to the fifth episode of Hype Season 3. This is Zafania and I'm going to be the host for this episode. What if I tell you, the guests which I have with me today are from the very first BCS batch to pass out from IIIT Gwalior with a computer science degree. And I'm pretty sure most of the students would be viewing this particular episode just because of this one reason. Let me invite my two guests, Prajwal Singh sir and Pragya Tata ma'am. Sir, ma'am, let us start with a brief introduction about yourself, just to let our viewers know about our guests. Hey everyone, thanks Sultan for inviting me here. I'm Pragya Tata. I'm from BTech CSE final year 2017 batch, and yeah, I've been placed at topper. Yeah, that's about me. Hey guys, I'm Prajwal, currently in my final year at IIIT Gwalior, Computer Science, and I did my internship at Gojek and also received a pre-placement offer from them. So let me start with Prajwal sir. You did your product engineer intern at Gojek, which later converted into a PPU. How do you feel after such an outstanding achievement? Because we all know converting internships into PPUs are very much vigorous, if I have to say that word. I think I'll say something first. I think Prajwal was the first guy in the batch who got the internship, and we all were like so happy for him because we always knew he deserved it. Yeah, you can continue. Okay, yeah. So as Pragna pointed out, that I was the first person who got internship in our batch, and so it was the first internship of the first batch of CS. So it was quite a big thing for us. So I have two stories for related to my internship and placement. So for internship, it was a very stressful situation because we were competing with like the IPG guys were there and they were having 1 year more experience than us. So we were quite demotivated. Like हम कैसे compete करेंगे और किसी का नहीं होना है. And Gojek accepts only people who have done GSOC and have a very far developer profile. So अपने बैच में ऐसा नहीं था ज़्यादातर लोगों का. So we were quite demotivated. But it turned out to be opposite. So I'll jump directly to my story. So what happened? जैसे first interview दे दिया था रात में and I returned to my hostel at around 9 and 10. And next interviews अगले दिन होने वाले थे and I was quite confident कि हाँ हो जाएगा next round में भी. And it was I guess 2 AM in the night and मैं रिवाइज करते करते सो गया था नेक्स्ट डे के लिए एंड मोबाइल पे खूब सारे मैसेजेस आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के एंड आई वाज लाइक कि ठीक है सेकंड राउंड में होने पे इतना कॉन्ग्रेचुलेट कौन करता है. देन व्हेन आई रेड द मैसेज आई वाज डायरेक्टली सेलेक्टेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड. सो इट वाज एकदम से चीज़ें चेंज हो जाना एंड इट वाज लाइक कि येस्टरडे इट वाज अ ड्रीम एंड टुडे इट इज़ अ रियलिटी. सो यस, हॉस्टल में जाके सबके रूम में सेलिब्रेट किया था एंड सब काफ़ी मतलब फर्स्ट इंटर्न थी बैच की तो खाता खुल गया था बैच का. एंड कमिंग टू द प्लेसमेंट, सो इट वाज अमिड्स द पैंडेमिक. सो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी फिर से बिकॉज हम लोग को डर था कि कहीं इंटर्नशिप्स कैंसिल ना हो जाए एंड सारी ऑन बोर्डिंग वर्चुअली हुई थी. बट इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट गुड. बहुत अच्छी टीम मिली थी, काम भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग था. And but after 1 month I came to know about the head of engineering is quite impressed with me and they are planning to offer me a pre-placement offer. So I was like कि चलो हो गया इसमें भी finally. But what happened कि internship जब खत्म हो गई तो reviews were very very positive and presentation भी काफ़ी अच्छी गई थी, project भी काफ़ी impactful था. But what happened कि बहुत सारी companies में hiring freeze हो गई थी. So मतलब जो रिटर्न ऑफर होता है वो अटक गया था बीच में. सो वो जो टाइम था वो बहुत ही डिलेमा फुल टाइम था. मतलब कंपनीज वर कमिंग इन आवर कॉलेज एंड आधे मन से कंपनीज में बैठता था एंड कोडिंग भी साथ में कर रहा था. कभी लगता था कि रहने देते हैं आ जाएगा ऑफर, कभी लगता था कि अब नहीं आने वाला. सो आफ्टर 2 or 3 months आई रिमेंबर जियो का इंटरव्यू था मेरा एंड रिजल्ट्स आने वाले थे and HR का call आता है from Gojek and she informed that we are very happy with your performance and we are offering you a pre-placement offer. So मतलब इस तरीके से न्यूज़ मिली थी एंड मम्मी के पास गया था एंड शी वाज क्राइंग, पापा को इन्फॉर्म किया था. सो इट वाज वेरी very emotional experience, but yeah, very great.
And my next question is for Pragya ma'am. Okay, you got not one, not two, but three company offers from Quantify, Topper, and NCR, and also you did an internship as a backend developer at Flamingo. Yeah, Flamingo. So, what pro tip can you give to the students who are preparing for interviews? Okay, I'll start from how I started searching for interns. So I think around अक्टूबर नवंबर इनोवेशन से आया था नोटिफिकेशन कि they're looking for summer interns एंड मेरी फट रही थी कि अब भाई कुछ नहीं किया, अब तो कुछ करना पड़ेगा. सो आई स्टार्टेड learning React, and this guy here, he started helping me in the backend development because I was doing the front end part. So together हमने एक project किया था जो उन्होंने दिया, and I submitted. And I think around major examinations time पे कल मैक्स कुछ मेजर एग्जाम था और रात में मैं कोड कर रही थी इसी का. मैं मेजर का छोड़ दी कि गया तो गया, मेरे को कोड करना है करके. एंड इतना किया था बट आई डिडंट गेट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, सो आई वाज डिसअपॉइंटेड बहुत. देन आई थॉट ठीक है, बट आई लर्न समथिंग. इतना प्रोजेक्ट किया, सो आई कंटिन्यू डूइंग React and Node.js. Then I did Node.js, so I got got interest in this stack development. फिर I was looking for opportunities, फिर reject हो रहा था. और मेरा BNY में फाइनल राउंड में हुआ and they told because of coronavirus they're taking less interns, इसीलिए मेरा रिजेक्ट हुआ. So it was a mini heartbreak for me. Then I came into Flamingo with a startup, so I thought ठीक है कुछ तो intern का रहेगा in my resume. And मैंने किया, it was a startup, so scratch से deployment तक I was there, and some days I even worked 14-15 hours. So I think it helped me gain my confidence and it helped me feel that no, I know things. And फिर आया प्लेसमेंट सीजन और फिर से मैं डरने लग गई कि भाई इंटर्न किया, कोडिंग तो किया ही नहीं. फिर से बट मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर से कोडिंग करती थी. आई वाज एन एवरेज कोडर, तो आई पिक्ड इट अप सून. बट फिर से वही, आई थिंक पेटीएम में सेलेक्ट हुई थी मैं पहला राउंड, पर वो भी रिजेक्ट, अमेजोन भी रिजेक्ट. फिर मैं तो ऐसे थी कि मेरे को नौकरी मिलेगी कि भी नहीं. But I didn't give up on studying, even though I went into that phase where I might not end up in a job. Then I think Quantify ka hua. I was very, very happy, but not completely satisfied because I thought I could do better. और फिर Topper का आया था. I remember telling my dad कि पापा इसमें तो बड़े बड़े सीनियर्स का हुआ, मेरा तो नहीं होगा, बस ऐसे ही इंटरव्यू दे रही हूँ. Then I gave Topper first round mein, without hesitation I answered everything correct. So I was proud of myself that I did the interview so well. So they directly pushed me into the final round, and yeah, the final round was a pressure testing round. He was throwing questions onto me, but yeah, I performed well, I guess, so I got selected. And yeah, I cried for 1-2 minutes when I saw Pragya Tata Topper selected. Tips is like, don't give up. Keep searching. Rejections आते हैं तभी success होगा. I think that I'm a pure example for that. So one has to learn from their failures. Nicely said, ma'am. Next question. How can one adapt to technologies evolving at high speed, and how to cope up with that? Ma'am, let's start with you. I think it's not necessary for us to know every language, every technology, but yeah, you should know what is coming new, because every 3, 4, 5 years new technologies keep popping up, and you should know what does technology do and what are the pros and cons of it, why it came, why is it trending. I think that's necessary rather than going deep into the language and knowing every syntax. You should just know what it does, why is it used. And yeah, through LinkedIn, Quora, and friends, I think with these discussions, you can always be knowing what is going on. And always keep tabs with people who know things more than you. I think that will always help us. Yeah, so my perspective is, yeah, exactly as she said,
that we don't have to stick to two or three like we don't have to stick to a certain technology in our 4-year journey, and नई चीज़ें हमेशा सीखती रहनी चाहिए. Because I remember in my interview with Gojek, so interviewer ने मुझसे पूछा था like how do you approach a new technology, like how do you learn something which is new to you. I think ये skill बहुत ही underwhelm किया जाता है कि because even if you switch companies काफ़ी tech stacks change हो जाते हैं, requirements change हो जाती है, and ये इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि हर 5-6 साल में नई चीज़ें आती रहती है. सो अभी हो सकता है कोई एक टेक्नोलॉजी बहुत ही ट्रेंडिंग है, 4 साल बाद ना हो और तुमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया. सो इट्स ओके, बट यू शुड लर्न दी स्किल ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू. लाइक नई चीज़ों पे स्विच करते रहना, फ्लेक्सिबल रहना. काइंड ऑफ मैंने तो अपनी जर्नी में ऐसा ही फॉलो किया, बिकॉज आई स्विच फ्रॉम Node.js टू Golang, एंड देन अभी भी इंटर्नशिप में काम रहता है तो क्लोजर एंड Ruby. सो मतलब चेंज करते रहना इज गुड. I think it is never sticking to one thing. तुम्हारे पूरे प्रोफेशनल लाइफ में I think you'll be keep on switching according to the project you receive. So एग्जैक्टली. एंड मेरा भी अगर CV भी अगर देखा जाएगा तो उसमें पाइथन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें Node.js के प्रोजेक्ट है, कुछ ब्लॉकचेन के भी प्रोजेक्ट्स हैं. तो मतलब कोई देख के आई एम नॉट प्रो इन एवरीथिंग, बट यस आई नो स्टफ. Okay, so both of you are from Bachelor's of Computer Science degree, that is 4-year course. How did you handle the pressure of being the first batch to pass out? ओके, सो प्रेशर तो था, बहुत था, और बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलती थी फर्स्ट ईयर में. द फैकल्टीज एंड डायरेक्टर यूज्ड टू से दैट यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ BCS, सो वी आर क्रिएटिंग न्यू पॉलिसीज फॉर यू, एंड वी आर वेरी हैप्पी एज वेल एज वी वर कॉन्फिडेंट कि चलो हम लोग का बैच है एंड 4 साल वाला ही बैच है एंड हम पे फोकस भी कर रहे हैं, तो रहेगी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी. बट एज टाइम पास्ड वी वर डिपार्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक इन आवर समर्स वी वर रिक्वायर्ड टू डू अ हार्डवेयर project which turned out to be a complete mess, because we cannot even it is not in our mainstream and we cannot display it in our skills and everything, and also the project got dismantled, so we don't have it to showcase it to someone. And also we were not allowed to sit for 6 months internship and everything. So काफ़ी जगह पे हम लैक कर रहे थे अपने IPG काउंटरपार्ट से, एंड प्रेशर तो रहते ही था, बिकॉज इट इज़ अ 4 years you have to gain enough experience to get hired. So प्रेशर रहता है फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही. एंड जूनियर्स को भी देखता हूँ तो वो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही पूछने लगते हैं कि इंटर्नशिप कहाँ करना है, कब से स्टार्ट करना है. सो यस, प्रेशर रहता है, बट आई थिंक यू कैन मैनेज इट. एंड मैंने भी मैनेज किया ही था, लाइक CGPA भी मेंटेन कर लिया था, एंड इंटर्नशिप्स भी काफ़ी कर ली थी, एंड एकेडमिक्स और बाकी की सोशल लाइफ भी चलती थी. तो आई थिंक उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं, बट प्रेशर रहता है. हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा था कि फैकल्टी बहुत अटेंशन देती थी कि यार तुम लोग फर्स्ट BCS बैच हो, ऐसे एज इफ वी आर द न्यू फ्लावर्स ऑफ द कॉलेज. पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा. दे डिडंट गिव अस एनी मेरिट्स और क्रेडिट्स फॉर दैट कि हमारे इन फेवर में आ जाए, बिकॉज हार्डवेयर प्रोजेक्ट करने के लिए बोला, एंड आई थिंक आई रिमूव्ड इट फ्रॉम माय रेज्यूमे, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है उसको, कुछ फायदा ही नहीं है उसका, और मतलब कुछ सीखा वीखा भी नहीं है उससे, पॉइंटलेस था. मतलब विच इज यूजफुल इन फॉर माय फ्यूचर करियर, नो नथिंग. कंपलसरी हार्डवेयर कर दिया, एंड अभी हमारे बैच ने इतना लड़ा, 6 month इंटर्नशिप का भी बंद कर दिया. और हाँ, जूनियर्स आ जाते थे फर्स्ट ईयर में, वो जब फर्स्ट ईयर में थे कि मैम क्या कोडिंग करना है, तो प्रेशर तो था हम पे भी कि भाई क्या कर रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं ना, ऐसे आर वी इन द राइट ट्रैक और नॉट. बट आई थिंक आवर बैच मैनेज्ड एंड डिड परफॉर्म वेल. वैसे एक और चीज़ है, फर्स्ट ईयर में हमें याद है कॉलेज में आधे लोग पूछते थे, अच्छा CS बैच भी है क्या इस कॉलेज में? We were the first batch. मतलब जो 5th year सीनियर्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं था कि एक CS बैच आया है. और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे एग्जाम्स होते थे तो उसमें CS नहीं लिखा रहता था, IPG लिखा रहता था, IMT लिखा रहता था, और वो एक गूगल फॉर्म भी है तो उसमें 5 year MTech 5 year MBA रहता था, CS गायब रहता था. We were only a small batch of 40, so कभी कभी इग्नोर होते थे, कभी बहुत एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती थी. So it was a mix of both. Okay, so the next question is also a little bit similar to this question. So
what were the challenges you faced fitting in the institute's culture, since our college always had the 5-year culture? I had a lot of problems. Actually, if anyone knows me and my friends, you know, all my friends are 5 years people. तो मैं उन्हीं के साथ सोना उठना पढ़ना सब उन्हीं के साथ होता था. तो I realized a bit late that I am 4 years and 5 years और मेरे को चीजें थोड़ा पहले करना चाहिए था. एंड ऑल्सो हमारे सीनियर्स के साथ हमें compete करना तो वो 1 year का डिफरेंस बहुत पड़ गया हम पे, बिकॉज दे कुड हैव डन द, मतलब उनके पास चॉइस था सेकेंड ईयर में इंटर्न करने का और थर्ड ईयर में उनका BTP सॉफ्टवेयर था. तो इट केम विद इन देयर फेवर और हमारे अगेंस्ट पूरा it was very opposite to us. And or obviously if someone has a additional internship in their resume, उन्हीं को attract होंगे. और तो मेरे को लगा था कि वो डिफरेंस आया था हम पे, बट आई थिंक हम लोगों ने कोडिंग भी बहुत की, इवन तो इंटर्नशिप नहीं किया. हमने कोडिंग की और इवेंचुअली थर्ड ईयर में हम लोगों ने कुछ लोगों ने इंटर्नशिप्स कर ली थी. तो वी काइंड ऑफ उस लेवल को क्रॉस किया जो हम लैक कर रहे थे और we did perform well. Yeah, so that is a very big thing because हम लोग फर्स्ट बैच थे तो कोई हमें सीनियर्स था नहीं exactly CS बैच का जो हमें गाइड कर सके. बट यू नो आई ऑलवेज रीच्ड आउट टू द IPG सीनियर्स, इवन 5 year वाले. तो मतलब वो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि अच्छा CS बैच के हमारे साथ compete करेगा तो ये वो, बट बहुत ही अच्छे से बड़े प्यार से हर चीज़ बताते थे. एंड बट द थिंग इज कि जैसे जब हॉस्टल्स पे डिवाइड होते हैं सेकेंड ईयर से, तो CS बैच वाज इन अदर हॉस्टल BH1 एंड द सीनियर्स, आवर सीनियर्स वर देयर इन BH2 BH3. सो मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती थी. सो आई यूज्ड टू गो टू द एडजॉइनिंग हॉस्टल एंड वहाँ पे जाके सीनियर से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाके अपने बैच वालों को बताता था. एंड काफ़ी मतलब कौन कहाँ पे अप्लाई कर रहा है एंड क्या मतलब क्या ट्रैक रखना है, किस टाइमलाइन में क्या करना है. सो जो इवन जो हमसे 1 साल और आगे वाले सीनियर्स थे, सो दे ऑल्सो हेल्प. एंड मतलब हाँ, ये चीज़ में होता था. I would like to add on this कि गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कल्चर नहीं है एंड आई डोंट नो क्यों नहीं है कि सीनियर्स के साथ बैठ के कोड करे या उनको पूछे क्वेश्चन. आई थिंक ये होना चाहिए और मैं अपने सारे लड़कियां जूनियर्स को बोलना चाहती हूँ कि सीनियर्स से सिर्फ आउटसाइड थिंग्स के बातें नहीं, बैठ के जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है उनके साथ कोड करो, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो. मतलब जिसकी इंटर्न्स लगी है उनसे पूछो कि और क्या सीखूं और 1-2 घंटे उनके पास बैठ जाओ. उसी से आई थिंक कल्चर स्टार्ट होता है. एंड गर्ल्स हॉस्टल में नहीं है, बट आई थिंक अदर पीपल कैन स्टार्ट नो. पर बॉयज हॉस्टल में ये प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यहाँ पे पूरी लॉबी की लॉबी मिलके कोडिंग करती है. सो मतलब काफी अच्छा कल्चर है. इनको देख के हमें जलन होती थी कि भाई इनका कितना सही है और हमारा ऐसा क्यों है, कोई आता ही नहीं है बताने चीजें और कोई जाता भी नहीं है. हम लोग की तो ऐसी जगह थी जहाँ साइड में एक क्रिकेट कोर्ट भी, मतलब वो बैडमिंटन कोर्ट है पर उसको क्रिकेट बना दिया गया है. सो रात भर 2 बजे 3 बजे तक लोग खेलते रहते गाना बजा के. सो काफ़ी चल, मतलब मेजर्स या माइनर्स खत्म हुए तो या तो कंप्यूटर पे गेम खेलेंगे पूरी लॉबी मिलके, और मैंने भी कुछ टाइम खेला फिर छोड़ दिया था. फिर या तो नीचे क्रिकेट खेलेंगे. सो मतलब काफ़ी अच्छा रहता था. और ये चीज़ काफ़ी कॉलेज की मिस भी करता है कि हम लोग की लॉबी में मतलब हर तरीके के लोग थे. स्पोर्ट्समैन वाले भी लोग थे एकदम प्रो, एंड कोडर भी वाले थे, डेवलपर्स भी थे, and everything. Okay, so you mentioned about coding and development, so I can't resist myself asking this question. So many of the students will be in a dilemma that to be good at development, you don't have to be that of a fart coder. Something like a 5-star on Codeforces or Codechef or Canadian Master on Codeforces. So how much threshold skills are required for a developer in coding? कोडिंग से आई थिंक प्रैक्टिस बनती है. हाउ टू राइट अ कोड, उस सब का तुम्हें मतलब पूरा प्रोसीजर मेथड वो आता है. इट्स नॉट लाइक कोडिंग और डेवलपमेंट रिलेटेड ही नहीं है. नहीं है थोड़ा बहुत, क्योंकि डेवलपमेंट में भी तुम्हें कोड ही करना होता है पर वो थोड़ा मेथड वाइज कोडिंग होती है. एंड
हाँ, इतना 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 प्रो लेवल की कोडर नहीं होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, पर नहीं, तुम्हारे कोडिंग से तुम्हारी प्रैक्टिस बनती है, आदत बनती है सोचने की, बिकॉज यू हैव टू थिंक फास्ट. आई थिंक जितना मैक्स प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट तुम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन करोगे ना, तो जितना कोडिंग करोगे उतना डेवलपमेंट में भी थोड़ा दिमाग तेज चलेगा. आई थिंक दैट. एंड पर डेवलपमेंट इज अ प्योर अदर थिंग ऑल्सो, उसमें बहुत अदर थिंग्स भी ऐड हो जाती है, वो भी पता होना चाहिए. पर हाँ, प्रो लेवल की जरूरत नहीं है, पर कोडिंग करो. नेवर लीव कोडिंग. फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक करो. बीच में छोड़ भी रहे हो, बाद में पिकअप करना, क्योंकि प्लेसमेंट्स कोडिंग बहुत रिलेटेड है. तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स आने चाहिए. इट्स अ मस्ट. या सो आई थिंक काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोडिंग, काफ़ी लोग कोडिंग एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइक दे थिंक लाइक कोडिंग करना है मतलब कोडचेफ पे, कोड फोर्सेस पे एंड कोडचेफ पे अच्छी रैंक लाना है और एक कैंडिडेट मास्टर और अच्छा स्टार्स अचीव करना है. दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. Competitive coding is kind of a hobby, same like development is a hobby, and you don't have to, it is not mandatory for you to pursue competitive coding. अगर तुम्हें इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, कंपनीज क्रैक करनी है एंड अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना है, सो फॉर दैट यू नीड इंटरव्यू प्रिपरेशन इंस्टेड, लाइक एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स. इसके बारे में पढ़ना. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लीड कोड है, गीक्स फॉर गीक्स है, इंटरव्यू बिट है. इस पे तुम मॉक इंटरव्यूज भी दे सकते हो. तो इसमें मुझ पे काफ़ी डाउट्स आते हैं. मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको डेवलपमेंट काफ़ी पसंद होती है, बट दे आर काइंड ऑफ प्रेशराइज टू डू. मतलब उनको प्रेशर फील होता है कि कोडिंग करना है, मतलब कोड शेफ पे जाके या कोड फोर्सेस पे कोडिंग करना पड़ेगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली नेसेसरी. मैंने नहीं किया आज तक, आई गेस टाटा ने भी नहीं किया है. एंड सो लीड कोड इज एंड GFG इज मोर देन एनफ. एंड तुम्हें मतलब ऐसा भी होता है कि जब तुम डेवलपमेंट वाले, मतलब ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि कॉलेज में कोडिंग किया एंड जॉब लग गई, अब तो सिर्फ डेवलपमेंट करना है. इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस. लाइक तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस और एक लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो आती है प्रोग्रामिंग से एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से. एंड जो भी तुम सिस्टम्स डेवलप करते हो उसमें बेस्ट एल्गोरिथम कैसे यूज होगा और मोस्ट ऑप्टिमाइज वे टू डू समथिंग. सो ये सारी चीज़ें एक कोडिंग से आती है. या डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं पड़ता है, बट या दिस इज लाइक वन इम्पॉर्टेंट थिंग. डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए. इट्स अ मस्ट. So now going on to the next question, I already mentioned that Prajwal sir is a technical member of Uthan, and while coming to Pragya ma'am, she was the Miss Parichay of 2017, and you guys were also indulged in many other cultural activities in the institute. So what importance does it hold from one's interview perspective? So I can start. So when I came to college, I came with a mindset कि मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलेज में एकेडमिक्स पे फोकस करना है एंड सिर्फ पढ़ाई करनी है और प्लेसमेंट पाना है. आई वाज लाइक कि आई वांट टू एक्सपीरियंस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलेज लाइफ, विच इंक्लूडेड कि क्लब्स में पार्ट रहना, इवेंट्स में पार्ट रहना एंड बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई वाज पार्ट ऑफ उत्थान एंड ASF के भी सारे इवेंट्स में मैं जाता था एंड सारे हाईक्यूज अटेंड करता था, कभी कभी हाईटी के लिए भी. सो मतलब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, सारे फेस्ट कवर किए हैं. फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो मैं फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. सो मतलब इट वॉज क्वाइट नाइस एंड आई केम टू नो अ लॉट ऑफ सीनियर्स थ्रू दीज इनफॉर्मल इवेंट्स. सो इसमें क्या हुआ कि ये जो सीनियर्स थे, दे हेल्प मी सम वे और द अदर लेटर इन द लाइफ फॉर सम गुड अपॉर्चुनिटीज़. सो हाँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हें बाकी लोगों से नेटवर्क करते रहना चाहिए, प्लस कॉलेज के जो इवेंट्स है उसमें पार्ट रहना चाहिए. एंड या सो मतलब मैंने भी किया था, तो काफ़ी अच्छा रहता है. मेरे पर्सपेक्टिव से आई थिंक फेस्ट क्लब से पहले दोस्त बनते हैं एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि स्टार्टिंग में यू मेक मोर फ्रेंड्स, ताकि यू हैव अ सोशल लाइफ, यू हैव पीपल टू गो टू. और आई थिंक मोर ओवर इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब डेवलप होते हैं. व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू पुट आउट
what you think, and when you discuss, tabhi you know what is right, what is wrong, what you're talking, what you should talk, or maybe you might find someone better who has a better perspective, and उनसे तुम्हें पता चलता है कि नहीं ऐसे बात करना चाहिए, ऐसा बात करना चाहिए. So I think interview perspective से तुम्हारी personality और confidence develop करता है. Meeting people, involving in clubs, talking to your seniors. So yeah. मतलब मैं ऐसे गया, मैं बच गया, मतलब सेकेंड ईयर तक मैं समझ गया था कि ठीक है, इफ यू आर गुड एट समथिंग प्रे में कर लो फर्स्ट ईयर में, पर सेकेंड ईयर से मत करो. क्योंकि हाँ, तुम्हें बाकी चीजों में भी टाइम देना है, एंड यू कांट बी अ पार्ट ऑफ ओनली फेस्ट एंड सोशल लाइफ. मतलब अपनी एकेडमिक्स को भी देख के चलो, अपने जो प्लेसमेंट वाली चीज है एंड स्किल्स जो डेवलप करो उसको भी देख के चलो. सो हर चीज रहती है, बट आई थिंक इट्स अबाउट मैनेजिंग. इट्स रियली अबाउट मैनेजिंग. तुम फेस्ट में टाइम दे रहे हो, उतना टाइम एकेडमिक्स आई डोंट मीन तुम्हारा वो एकेडमिक्स नहीं, जो तुम्हें अपने रेज्यूमे के लिए स्किल सेट डेवलप करना है, वो एकेडमिक्स की बात कर रही हूँ. पर फर्स्ट ईयर में फेस्ट से ही दोस्त बनते हैं, मेमोरीज बनते हैं, जो अभी तक मेरे को क्लियर क्रिस्टल याद है कि किससे क्या बातें की, कब रोया, कब झगड़ा किया, कब इतनी सारी मूवमेंट्स बनी. तो आई थिंक हाँ, एंड आई थिंक द क्वेश्चन वाज फोकस्ड ऑन कि इसको इंटरव्यू में कैसा हेल्प मिलता है. आई थिंक इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंटरव्यू, इट इज मोर ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. बिकॉज ऐसा नहीं है कि यार तुम कॉलेज में सब कुछ करके इंटरव्यू क्रैक करके कंपनी चले गए एंड लाइफ खत्म हो गई. यू नो, काइंड ऑफ एक नया फेज वहीं से स्टार्ट होता है. अगर तुम कॉलेज में कॉन्फिडेंट नहीं हो, लोगों को अप्रोच करना नहीं जानते हो, बहुत सारे कनेक्शंस नहीं बने, तो तुम जब बाहर जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल दैट. सो it's much larger picture. So yes. Okay, so let's move on to our last question, I guess so. Sarah ma'am, so how would you visualize your 4-year journey? How you started as a fresher and ended up being successfully placed at respective companies? How captivating was this journey? Yeah, I remember कि मैं 11th 12th में बहुत, if someone knows नारायणा, मैं उसमें थी, and it was like a 6 to 10 वाला college. तो मैं एकदम, so I was very very in a motive to enjoy a lot, कि college life enjoy करना है. तो I came first year पूरा enjoy किया, पर constantly डर भी था कि coding करनी है, क्योंकि जैसे प्रज्वल है, उत्कर्ष है, मेरे बैचमेट थे, उनको सी आती थी और क्लास में फटक 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 आंसर देते थे. और मैं फर्स्ट लैब में, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आगे वाले बंदे को पूछ रही थी कि स्कैनर क्यों लिखते हैं प्रिंटर से पहले. तो उसने मेरे को ऊपर से नीचे घूरा कि तुम्हें ये भी नहीं पता. और फिर मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट हुआ कि मैं उस दिन पूरा बैठ के स्कैनर प्रिंटर का देख रही थी. तो आई थिंक वो कांस्टेंट टेंशन था कि मेरे पीछे में कि आई शुड नॉट लैग, आई शुड बी एटलीस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. तो इस मोटिवेशन से मैंने कोडिंग शुरू किया. एंड आई थिंक ASF आल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन इट, क्योंकि वो इतने टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ कुछ तो करना चाहिए. वो इतना बता रहे हैं, एटलीस्ट हाईक्यूज अटेंड करो ताकि यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट आर देयर, व्हाट आर योर ऑप्शंस, एंड हाउ अदर पीपल आर परफॉर्मिंग, व्हाट इज योर कंपटीशन. आई थिंक यू विल नो इट एट द बैक ऑफ योर माइंड. सो फर्स्ट ईयर वैसा था, सेकेंड ईयर में पूरा कोडिंग में थी, थर्ड ईयर में डल से डेवलपमेंट शुरू किया, प्रेशराइज्ड डेवलपमेंट, which eventually turned into a favorite thing. And fourth year का first phase tension था, but eventually placed. So I think first year में enjoy करना चाहिए, नहीं तो first year will never come back. It's the time you make friends, you make memories, you fight, you laugh, I think. Ma'am, I think you shouldn't have mentioned about the first year college life here, because many of the first year students would be viewing this episode. हाँ, वैसे एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ी बैच है फर्स्ट ईयर की जिनको LRC का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा. Oh, okay, the new batch. Stick to the question. So I guess we were talking about the 4-year journey. So 4-year मेरे किसी एक सीनियर ने एक बार कहा था कि अपने कॉलेज लाइफ का केवल 2 साल बहुत अच्छे से याद रहता है, फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर.
एंड बीच का टाइम कब बीतेगा तुम्हें नहीं पता चलेगा. एंड आई गेस इट रियली हैपेंड. मतलब मैंने जब ये सुना था मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, बट सच में ऐसा होता है कि अभी जो चीज़ है केवल फर्स्ट ईयर की याद आती है, इम्पोर्टेंट वाली और फोर्थ ईयर वाली. सो माई फर्स्ट ईयर वॉज अ मिक्स ऑफ. मैंने फोटोशॉप खूब किया था फर्स्ट ईयर में एंड हैकर रैंक खूब किया था. सो आई वॉज मोर इनटू कोडिंग इन माय फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड इट वाज अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड एवरीथिंग. सो मतलब उसी में लगा रहता था. एंड फिर सेकेंड ईयर में ये चीज़ रियलाइज हुई कि सिर्फ कोडिंग से यू कांट शो एनीथिंग टू एनीवन. लाइक समथिंग इज नॉट वर्किंग. लाइक आई नीड समथिंग टू शोकेस. सो डेवलपमेंट वाली चीज़ में फिर इंट्रो हुआ एंड वो चीज़ इतनी पसंद आ गई कि पूरे सेकेंड एंड थर्ड ईयर तक मैंने डेवलपमेंट में ही ज़्यादा फोकस किया. एंड फिर क्योंकि इंटर्नशिप्स आने वाले थे तो फिर से कोडिंग पे रेज्यूम किया. बट कोडिंग नॉट मीन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, मोस्टली इट वाज रिलेटेड टू इंटरव्यू प्रिपरेशन. एंड हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था. सो आई केप्ट इट अ मिक्स ऑफ बोथ. एंड बाकी चीज़ें तो साइड में चलती रही. जैसे आई वॉज अ पार्ट ऑफ उत्थान इवन इन माई सेकेंड एंड थर्ड ईयर. मतलब मुझे याद है कि इंटर्नशिप्स का सीज़न चल रहा था, फिर भी कोई मीटिंग या डिस्कशन रहता था तो मैं जाता था. एंड आई रिमेंबर कि व्हेन वी वर शूटिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाइप 2 years बैक एंड काइंड ऑफ मेरे भी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे. सो आई वॉज एट द बैक ऑफ द कैमरा देन. And I very dearly wanted to be on the front side of the camera after 2 and 3 years कि मैं इतना eligible और इतना ऐसा कुछ अचीव करूँ कि हाँ कि people will interview for this. ये चीज़ मुझे याद है. मैंने फर्स्ट ईयर में ही सोचा था कि यार ऐसा हो पाएगा. एंड मैंने ये सोच लिया था कि I would say this even when I'll be interviewing with Hype after 2 years. So इसलिए this was the line. And ऋतिक सर का हमने इंटरव्यू किया था and he was also in Gojek. एंड वहीं से मुझे इंस्पिरेशन भी मिली थी कि यार मुझे यही कंपनी जानी है. इट वाज हैविंग अ वेरी कूल कल्चर एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स. सो या दैट वाज माय 4 year जर्नी. एंड काइंड ऑफ फोर्थ ईयर में गोवा जाने का भी प्लान था. बट या हो सकता है फिफ्थ ईयर में अब जाए. Okay, so let's start. That's enough of the interview questions. Now let's have a fun session. It's called Who's More Likely To. So when I ask a question, you guys have to like point out or say who is more likely to like best suited for that question. So here's my first question. Who's more likely to sleep in class? टाटा. I think I slept also. मैं एकदम अटेंटिव बैठा था. मुझे देख के बोलती थी इतना क्या पसंद आ रहा है क्लास. Okay. Who is more likely to initiate a mass bunk? ये तो बॉयज साइड से ही होता था. गर्ल्स का कोई मेजॉरिटी नहीं था. ऐसा होता था कि जैसे हम लोग के भी लॉबी में ऐसा हुआ कि अच्छा 4 बजे क्लास है, खाना खा के 2 बजे सो गए, 4 बजे क्लास है, बाहर निकले 4 बजे, देखिए लॉबी सब शांत है, सब सो रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला के पूछा कोई जानना चाह रहा है, मन है नहीं है, चलो मास बंक बोलते हैं. तब ग्रुप पे हम लोग की मेजॉरिटी थी लॉबी की. और मैं इन सबको मैसेज करती थी कि आ रहे हो क्या, कौन जाएगा, छोड़ो ना, ऐसे ऐसे चलता था. देखो 40 लोग के बैच में ये तो बहुत ही अपर पॉइंट, मतलब एक रहता है एडवांटेज, बहुत इजीली मैनेज हो जाती है सब चीजें. Okay, who is more likely to submit assignment at last minute? नहीं, सो फर्स्ट ईयर में मैं ऐसा था कि हाँ बहुत सारी चीजें टाइम पे हर चीज करना. सबमिशन 2 दिन बाद है तो 2 दिन पहले कंप्लीट करके रखना. बट लास्ट ईयर आते आते तक आई वाज इन दी. मैं फर्स्ट ईयर से ही ऐसी थी, लास्ट में ही सबमिट करती थी. Okay, who has more attendance? Prajwal Singh. Okay, who is more likely to borrow things from friends? Borrow matlab if you guys are going to cafeteria, like who is more likely to say that person that भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा. हाँ तो ये तो टाटा है ना सबसे आगे. मतलब हाँ she would always ask for कि अच्छा पैसे हैं क्या, मैं बाद में दे दूंगी. I used to give, okay, फोन पे जीपे करती थी तुम्हारे सामने, मेरे पास कैश नहीं रहता था, ठीक है. ये नहीं बोल रहा कि उधार मांगती थी, मतलब it was like कि she is more likely to ask for things and I was always
I never had cash, so I used to always जो कोई कैफेटेरिया जा रहा है उसके पास पैसे होंगे उसको पूछ लेंगे. Okay, who is more likely to top even after saying I don't study? Rajat, obviously. ऐसे ही बोलता है कि कुछ नहीं करा, दूसरा रिविजन करके बैठता है. हाँ तो मैं सच में नहीं पढ़ता. नहीं देखो ऐसा है, सच में ऐसा है कि मैं सच में एक ही बार पढ़ता हूँ पर मुझे याद रहती है चीजें. सो मतलब इट्स लाइक आई स्टडी ओनली वंस बट या इट स्टिक्स इन माय माइंड. सो हाँ ऐसा है. But we used to study a lot together, तो हाँ. पता रहता था कि कौन कितना पढ़ा है. लास्ट में एक्चुअली काफी साथ में बैठ के पढ़े हैं. वो स्पेशली वो वाले सब्जेक्ट जिसमें किसी की प्रोबेबिलिटी नींद आने की, ताकि दूसरा वाला उसको रखे नहीं, अभी कंप्लीट करना है ये सेक्शन. सो who is more likely to cancel plans at the last moment? प्रज्वल सिंह. मैंने कौन सा प्लान कैंसिल कर दिया? Okay, who is more likely to not pay their share for hangouts? हमारा डिसाइडेड रहता था कि पार्टी जा रहे हैं कि खाने जा रहे हैं. खाने जा रहे हैं वी यूज्ड टू स्प्लिट, और पार्टी है तो जिसका है बट वो. टाटा का एक चीज बहुत क्लियर रहती थी पहले से कि मैं अकेले नहीं पे करूंगी, ये चीज स्प्लिट होने वाली. मतलब ये वहां जाके डिसाइड नहीं होगा, ये पहले ही कि आज पार्टी आज यहाँ चल रहा है और दोनों पे करेंगे. So it was never. We used to decide beforehand. I think मैं सबके साथ beforehand ही decide करती हूँ कि इतना होगा इतना होगा. So actually इसकी भी एक स्टोरी है कि टाटा की इतनी सारी ग्रुप्स है कि वो हम लोग के ग्रुप पे आके बोलती है कि यार अपन कितने टाइम से कहीं बाहर नहीं गए और हम लोग के साथ कहीं बाहर जाती है. फिर वो यही चीज नेक्स्ट ग्रुप के साथ जाके बोलती है एंड ये चीज नेक्स्ट ग्रुप के साथ बोलती है, और जब उसकी साइकिल वापस आती है तो हम लोग के ग्रुप वापस आती है. एंड शी इज कॉन्स्टेंटली अटेंडिंग एनी पार्टीज. एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि कहीं इसके साथ कहीं जाने तो अपॉइंटमेंट लेना होता था कि अच्छा परसों फ्री है, नहीं 4 से 5 तो यहाँ जा रही हो, परसों यहाँ जा रही हो, यहाँ जा रही हो. सो इसीलिए ये पैसे वाली चीज इतना पहले क्लियर करती थी. अरे भाई इतने ज्यादा दोस्त थे फर्स्ट ईयर में, हो जाता था. Okay, I think this question, I think most of the juniors won't be knowing this. Who is more likely to be seen at PMC? PMC प्रज्वल. हाँ टाटा. ठीक. हाँ तो बहुत बार देखा है तुम्हें मैंने. चुप करो क्या. तुमने मुझे देखा तो मतलब तुम भी वहीं पे थी ना. बाहर से देखती थी कि ये अब वहां जा रहा है करके. प्रज्वल क्लियर. So here's the last question for the fun session. Whose middle name is Travel? टाटा. मैं ट्रिप्स पे गई हूँ बहुत. कहाँ कहाँ गए ट्रिप ये बताओ. दिल्ली गई हूँ, कूर्ग गई हूँ, मुक्तेश्वर नैनीताल गई हूँ, गोवा गई हूँ. गोवा इज अ वेरी बिग थिंग. Yeah, it's a goal accomplished for me. मैं अभी तक कॉलेज में एक ट्रिप पे गया, वो भी कॉलेज फंडेड हैकाथॉन में गया था. सो और जीत के भी आए थे हम लोग. तो एक तरीके से यू ट्रैवल टू अ प्लेस एंड अर्न समथिंग. सो इकलौती ट्रिप है वो अपनी नागपुर की. Okay, sir, ma'am. We got to know that you guys are good friends. We got to know the bond you share. So, do you want to share any unheard incidents about each other or any fun stories? I think हमारे बीच में भी obviously झगड़े हुए थे. मैं इससे गुस्सा होती थी बहुत बार. But it always like starting में मेरा first friend था प्रज्वल, तो वो कनेक्शन था उसके साथ हमेशा. तो I always used to get back to him कि ठीक है, I forgive what happened. मतलब किसका भी गलती हो चलेगा. I always kind of needed him. वो मतलब मेरा एक constant person है, go to person है, जिससे कुछ भी हो, कुछ भी गॉसिप, दुनिया भर की गॉसिप उसको बताती हूँ. तो also we always had each other backs. हम हमेशा एलआरसी में पढ़ते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम है सुनते थे प्रॉब्लम, we used to talk. So it's not something like unheard story ऐसा कुछ, but नहीं फन स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना. सो इट वाज लाइक कि मुझे काफी बार सोचा गया कि मैं साउथ का हूँ. क्यों? क्योंकि मैं टाटा के साथ इतना रहता हूँ. काफी सीनियर्स ने और फैकल्टी ने मुझसे साउथ में पूछा. नो आई सेड नो सर हिंदी. थोड़ा सा मेरे स्किन का भी डार्क कम्प्लेक्शन है, प्लस मैं टाटा के साथ इतना रहता. सो पीपल थॉट दैट हमारे बीच में कुछ चल भी रहा है, कभी ऐसा लगा था. बट या वी आर ग्रेट फ्रेंड्स. और भी जैसे है मोमेंट, जैसे एक बार टाटा को कोई एक मूवी बहुत पसंद थी एंड
उसको देखना था तो मैं भी गया था क्योंकि मुझे फ्री में ऑफर हो रही थी. हाँ, I was like चलो मैं पे कर दूंगी. इसलिए गया तो, बट इट वाज नॉट वर्थ इट. मतलब मुझे नहीं पसंद आई, बट फ्री की मूवी थी. Okay, I think that's it from the fun session. Sir, ma'am, do you want to say do you want to give any suggestions to the upcoming juniors or us in particular? I think making friends, this is the phase where you make friends of life. So keep talking to people, make connections, be friends with seniors, तुम्हारे batchmates, juniors, जितने दोस्त हो सकते हैं दोस्त बनाओ. And in study का मामला, have a plan कि what do you want to do, what actually you're gonna do. Seriously, but start coding, learn things, don't give up. You will eventually learn. मेरे को भाई I told you ना printf scanf का भी नहीं पता था, but now I'm a good coder. So I think तुम सीखना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, टाइम अलॉट करना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव अ प्लान ऑफ व्हाट टू डू. एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड algorithms आर अ मस्ट. So Okay. what I would suggest my juniors is इतना सीरियस मत हो. अभी जैसे फर्स्ट ईयर में बहुत से सेशंस होते हैं, यूट्यूब इज फिल्ड विथ वीडियोस लाइक कि GSOC कैसे क्रैक करना है और बड़ी कंपनीज में कैसे जाना है, कम रोड मैप क्या है, दिस एंड दैट. सो फर्स्ट ईयर इज मोर फॉर एक्सप्लोरिंग स्टफ and making friends, meeting new people, making connections and meeting seniors, everything. Events में participate करना, stage fear दूर करना, अपने hobbies, passions पे काम करना, क्योंकि college is more about, I guess, complete work on your personality instead of कि सिर्फ हाँ placement के लिए आए हैं और placement लेके जाएंगे. And So- actually college gives you the time, opportunity, people, it actually provides you with that, so you should try it when you have that, because after you enter, I think this job phase, you won't have that much time. Actually, Tata also said कि the college is where you make friends for life. So कॉलेज में तुम्हें ऐसे लोग बनेंगे जो डेवलपमेंट में बहुत ही कीन इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके साथ एक ग्रुप बन जाएगी तुम्हारी. कोई हो सकता है ट्रैवलिंग की एक ग्रुप बन जाए तुम्हारी, कोई फोटोग्राफी की ग्रुप बन जाए. सो दिस विल नॉट, मतलब यू डोंट मीट न्यू पीपल इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. इट इज़ इन स्कूल, इट इज़ इन कॉलेज. कॉलेज में तुम्हें काफ़ी फ्रीडम भी मिलती है एंड टाइम भी मिलता है. सो यू कैन वर्क ऑन ऑल ऑफ दिस एंड इतना प्रेशर मत लो फर्स्ट ईयर से. हर चीज़ प्लान आउट करके चलो, हर एक ईयर के लिए प्लान आउट कर लो. बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर से लग गए हैं कि फोर्थ ईयर की प्लेसमेंट लेनी है. प्लेसमेंट तो ले लोगे पर लाइफ में बहुत सी चीज़ मिस कर दोगे. जो बचेगा फाइनल ईयर तक वो फर्स्ट सेकेंड ईयर की मेमोरीज ही है, तो फर्स्ट ईयर पे जितना मजे करना है कर लेना. ओ फर्स्ट ईयर वालों पे ये वैलिड नहीं है शायद. बेचारे कॉलेज भी नहीं आए. नहीं, आई थिंक इसकी एक मतलब एक पॉजिटिव भी है इस चीज़ का. मतलब जो भी कोविड हुआ एंड कॉलेजेस क्लोज हो गए, आई थिंक कि लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं. एंड जब ये चीज़ सब खुलेगा ना, तो पीपल विल डू एवरीथिंग होल हार्टेडली. लाइक दे विल, अगर उनका ट्रैवल का प्लान था, दे विल गो, दे विल नॉट वेट फॉर इट. जो फर्स्ट ईयर वाले बंदे थे, वो जो सोचते कि प्लेसमेंट के बाद जाएंगे, वो सेकेंड ईयर में ही जाएंगे देखना. तो ये इसका एक पॉजिटिव चीज़ ले सकते हैं कि पैंडेमिक की वजह से ये हुआ है. Okay, so I just want to say, whoever are in their first year who didn't know what printf and scanf does, I just want to say, take some inspiration from Pragya ma'am. क्या एग्जैक्टली प्लेसमेंट वाली ये चीज़ है कि always कॉलेज अच्छा है, हो जाती है प्लेसमेंट. बस ये है कि डोंट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर रहते हैं कि अच्छा एवरेज पैकेज कितना जाएगा तो मेरा भी एवरेज हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दिस. मतलब तुम्हें अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने स्किल्स पे काम करना होगा, पूरा अपने आप को अच्छे से डेवलप करो, यू विल गेट इट. सो you don't need to worry. Okay, that's it from this episode, guys. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for joining with me today. It would be good if you guys can say that, like, comment, subscribe to Uthan channel. So, since this is a very special episode, please like, share, and subscribe. Uthan IIITM.